آپ کا مطلب ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ لڑزاتی آواز بولی۔ میں نے اسے کب کہا؟ جشب اس کی پانی سے بھری نینا کٹورے دیکھ کر نرم پڑا۔ ابھی کہا ہے آپ نے، اگر ایسا ہوا تو میری بھی یہاں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ پانی پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل کر جھانکتے کہ مت ان آنکھوں میں جناب، ان میں خطرہ ہے ڈوب جانے کا۔ ارے کیا ہوا؟ جشب نے اس کا بازو تھام کر قریب کیا اور مسکراتے ہوئے ہیر کے آنسو پونچھ کر نیم آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ تم سے غصے میں کہہ دیا یار، تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو۔ میں ایسا کر سکتا ہوں کبھی؟ وہ پیار سے بولا۔ ہیر جانتی تھی جشب کو جب اس پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا تو وہی اس کی آنکھوں کو چھوتا تھا، اس لیے ریلیکس ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آج کے بعد اگر غصے سے بھی ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی بھی نہیں۔ جشب نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کی۔ تم بیویاں بہت چالاک ہوتی ہو، ذرا بینگ لگ جائے کہ شوہر کی کمزوری۔ ہیر کی یہ آنسو کیا ہے؟ ہر بات پر اس سے بلیک میل کرتی ہو۔ ہیر ہاں تو آپ شوہروں کو بھی چاہیے کہ ایسی بات ہی نہ کریں کہ بیویوں کو بلیک میل کرنا پڑے۔ وہ اٹھائی۔ اچھا اٹھو، کھانا کو لاؤ، کچھ بھوک لگی ہے۔ پہلے میری بات بنا غصے ٹکڑے سنی، پھر جاتی ہوں کھانا لینے۔ بولا جشب نے ریلیکس ہو کر بیٹھ کی فرش سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کی۔ وہ جانتا تھا ہیر اسے نہیں ڈالے گی۔ جشب اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، میرا بھابھی اتنی ینگ ہے، ساری زندگی بہوگی کی چادر اوڑھ کر تو نہیں گزار سکتی۔ حدید تو بہت چھوٹا ہے ابھی، بھابھی کی بھی کچھ ارمان ہوں گے، خواہشات ہوں گی جو یشار خان کے چلے جانے سے ادھورے رہ گئے ہیں۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان کی ادھوری خواہشات اور خوشی ان کو لوٹا دیں؟ کیونکہ اب ان کے بارے میں مجھے، آپ کو اور باقی گھر والوں کو ہی سوچنا ہے نا۔ وہ احسان سے بولی۔ مجھے بھابھی کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہیر، تو پھر بھی یہ کہ مجھے ان کی شمس خان سے شادی پر اعتراض ہے۔ جشب آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا نا کہ ہیر ماضی میں جو ہو چکا ہے اس سب بلا کر نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، تو پھر اب خود کیوں ماضی میں جھانک رہے ہیں؟ دیکھیں میں مانتی ہوں شمس لالہ سے یشار خان کا خون ہوا، مگر آپ جانتے ہیں یہ سب کسی دشمنی کے تحت نہیں بلکہ غلطی سے ہوا ہے۔ آپ کا رویہ لالہ کے ساتھ کیسے ہے میں جانتی ہوں، مگر میں نے کبھی بھی آپ سے اس بات کی شکایت نہیں کی، پھر کیوں آپ سب بلاتے نہیں ہیں؟ لالہ میں کسی چیز کی کمی ہے خان؟ وہ پڑھے لکھے ہیں، اچھی شکل و صورت کے مالک ہیں، اتنی بڑی جاگیر کے اکلوتے وارث ہیں، کچھ دیر کو اس بات کو بھول جائیں گے لالہ سے آپ کے بھائی کا خون ہوا ہے؟ پھر سوچ کر بتائیں، کیا وہ ایک مکمل انسان نہیں جس کو ہم میرے بھابھی کو سمجھ سکیں؟ ایک منٹ جشب، پلیز میری بات مکمل ہونے دیں پہلے۔ اس نے منہ کھولتے دیکھ کر روکا۔ میرا بھابھی بمشکل ہی 30 کی ہوں گی، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے جشب، جسے وہ تنہا نہیں گزار سکتی۔ کسی سہارے کی ضرورت ہے جو ان کو سنبھال سکے، ان کی خوشیاں لوٹا سکے، انہیں مان دے سکے۔ مجھے پورا یقین ہے شمس لالہ ان کے لیے ایک اچھا سہارا ثابت ہوں گے جشب۔ وہ دونوں ایک جیسے غم سے گزر چکے ہیں، اس لیے آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ وہ پراسرار انداز میں سے قائل کر رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے بھابھی کے لیے سب کچھ بھلا کر اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا؟ آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں بھابھی اپنے بڑوں کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گی، بس آپ چپ رہیں اس معاملے میں۔ ہم میرے بھابھی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گی جشب، اگر وہ مان جاتی ہیں تو پھر کوئی ایشو کریٹ نہیں کریں گے اس معاملے کو لے کر۔ آپ کو میری قسم۔ ہی نے جشب کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ پوری بلیک میلر ہو، آپ کے ساتھ رہ کر ہو گئی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ فائن، نہیں کروں گا کوئی ایشو کریٹ۔ اب خوش، بہت خوش۔ منا اور 70 میں نہ لڑا دڑ خان۔ تھینکس اینڈ لو یو الاٹ خان صاحب۔ وہ شرارت سے پشتو میں کہتی بیٹھ سے نیچے اتری۔ اب جا کہاں رہی ہو؟ جواب تو لیتی جاؤ اپنی بات کا۔ جشب نے اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر آواز لگائی، آ کر لوں گی جناب۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہٹاتی کمرے سے نکل گئی۔ جشب قائل تو لال حویلی سے ہی ہو کر آیا تھا کہ مہر بھابھی کی شادی کر دینی چاہیے، مگر دل شمس خان سے شادی پر راضی نہیں تھا، اور یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ شمس نے کسی دشمنی کی بنا پر یشار کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کسی بھی قبیلے سے کوئی دشمنی نہ رہی تھی۔ حقانہ فریدی صلح جو نرم طبیعت کے مالک تھے، لہٰذا ان سے نوازی میں کوئی دشمنی تھی نہیں حال میں، تو پھر شمس یشار لالہ کا خون کیوں کرتا؟ زبیر خان نے ٹھیک کہا تھا کہ شمس ارادتاً یشار کو قتل کرتا تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی لے کر خود حویلی نہ آتا، اور نہ ہی زبیر خان کو فون کر کے بتاتا کہ اس کے ہاتھوں سے یشار خان کا افریدی کا گولی لگی ہے۔ یہ سب اچانک ہوا تھا جس میں شمس کا کوئی قصور نہیں تھا جشب، تو پھر کیوں کر اس بات کو لے کر انکار کیا جائے؟ زبیر نے جشب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت دال حویلی کے دالان میں بیٹھے شمس کی پرپوز پر بات کر رہے تھے۔ اور ایسے بھی میں شمس کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، ہم کلاس فیلر ہو چکے ہیں۔ وہ دوست تھا میرا، ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہے وہ۔ یونیورسٹی کے زمانے میں اکثر حویلی آتا جاتا رہتا تھا، اماں بھی مل چکی ہیں شمس سے۔ زبیر خان نے اماں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جشب بچے، شمس اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔
ज़ुबैर ठीक कह रहा है। अम्मा ने भी शम्स खान की हमायत की। इस घर के बड़े और मेहरों के भाई होने के नाते मुझे इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं है। जब इन्होंने भी अपनी बेटी की तुम्हें दे रखी है, फिर इस रिश्ते के पीछे इन लोगों की बुरी नीयत नहीं हो सकती। ठंडे दिल व दिमाग से सोचा ज़ुबैर ने बात मुकम्मल करके यशब का कदम थपथपाया। मुझे भाभी की शादी में कोई मसला नहीं है लाला। मैं शम्स खान को इनके शोहर के रूप में नहीं देखना चाहता। बस कोई और अच्छा रिश्ता भी तो मिल सकता है हमें। यशब शिकस्ता से बोला। मगर मिल सकता है, मगर मगर कुछ नहीं ज़ुबैर। ये कहाँ का बड़ा नहीं है कि इसके फैसले को तरजीह दिया। मुझे तुम्हें और भरजाई मेहरों की अम्मी को जब कोई इतराज़ नहीं तो फिर यशब का इतराज़ कोई अहमियत नहीं रखता। हकान अफरीदी ने भी ज़ुबैर खान के फैसले की हामी भरी। जब मेरा इनकार या इकरार कोई अहमियत नहीं रखता तो फिर इस महफिल का हिस्सा क्यों बना रखा है मुझे? आप लोगों को जो दिल चाहते हैं वो फैसले करें। मैं सिर्फ मेहर भाभी के फैसले को ही तरजीह दूंगा। अगर इनको कोई मसला हो तो मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा। बाबा जान, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। उस पार्ट चेहरे से कहता बाहर निकल आया। वहाँ तो सब राजी थे शम्स खान के रिश्ते पर सवाई यशब के। जब मैं मेहर भाभी के फैसले के साथ हूँ तो फिर मजीद इस मामले में कुछ और सोचने का बाकी नहीं बचता। यशब ने लाल हवेली में हुई बात सोच कर लंबी सी सांस खारिज की और खुद को रिलैक्स करता तकिए पर सर रख कर लेट गया। मैं यशब को तो ठंडा कर चुकी हूँ इस मामले में, अगर मेहर भाभी को कैसे कायल करूँगी? यशब ने ठीक ही कहा है, मेरे भाभी के लिए हरगिज आसान नहीं होगा शम्स लाला को अपने शोहर के रूप में कबूल करना। और सोचती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी जब गुल ने बीबी जान का पैगाम दिया। वो हीर को अपने कमरे में बुला रही थी। हीर बुलावे पर इनके कमरे की दर बढ़ गई। बीबी जान आपने बुलाया? इसने बीबी जान के कमरे में आकर पूछा। हाँ आओ बैठो, यहाँ मुझे ज़रूरी बात करनी है। हीर जानती थी ज़रूरी बात क्या होगी, इसलिए सर हिलाती इनके सामने बैठ की। हाँ ने मुझे बताई कि लाल हवेली वाले ने क्यों बुलाया था इन्हें। बीबी जान ने खलक हंकार कर बात शुरू की। जी तुम जानती थी पहले से ये बात? इन्होंने सवारी नजरों से हीर को देखा। नहीं बीबी जान, अम्मा और बाबा ने मुझसे पूछे बगैर ही भाभी के घर वालों से बात कर ली थी। मुझे भी कल ही बताया अम्मा ने। अगर मुझे इल्म होता तो मैं आप लोगों से इजाज़त के बाद ही मेरे भाभी के घर वालों से बात करने का कहती इन्हें। बीबी जान मुतमिन हुई। आपको बुरा लगा बीबी जान? नहीं बच्चे, मुझे क्यों बुरा लगा? मेहरो मेरी भतीजी भी है। मैं भी चाहती हूँ कि वह खुशगवार जिंदगी गुजारे। इस रिश्ते पर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है लाल हवेली में। यहाँ भी सिर्फ यशब और मेहरों को ही इतराज़ है। बीबी जान जब से बात होगी है मेरी, उन्होंने कहा है अगर भाभी राजी हैं तो इनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा। भाभी से बात कर लिया आपने? हाँ अभी तुम्हारे आने से पहले की थी। भाभी, मेहरों की अम्मी का फ़ोन आया था कि कह रही थी कि वो ज़ुबैर को भेज रही हैं मेहरों को लेने के लिए, इसलिए एक दफ़ा मैं बात कर लूँ इससे। फिर क्या कहा भाभी ने? हीर पर जोश में कह रही थी इसे शादी ही नहीं करी, वो हदीद के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेगी, इसे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। बीबी जान की बात पर हीर का मुंह लटक गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है हीर, बच्चे की मेहरों से बात करो जाकर की ज़िंदगी बगैर किसी मर्द के सहारे की गुजारना आसान नहीं है, इसलिए ठंडे दिल व दिमाग से सोचिए इस बारे में। जी बीबी जान, मैं करती हूँ बात। ज़ुबैर के आने से पहले ही बात कर लेना, शायद शाम तक वो आ जाए मेहरों को लेने। जी मैं जाती हूँ अभी। हीर सर हिलाती कमरे से बाहर निकली और बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तरतीब देती मेहरों के कमरे की तरफ चल पड़ी। हीर जब मेहरों के कमरे में दाखिल हुई तो मेहरों सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। भाभी इसने पास्ता का पुकारा हूँ। मेहरों आंसू पूछती सीधी हुई। आप रो रही हैं? हीर ने इसकी सुर आंखों को देखकर बचा। नहीं बस ऐसे ही, तुम आओ बैठो। वो अफसरदा से मुस्कुरा कर बोली। हीर इसके साथ ही सोफे पर टिकी। भाभी वो मैं, हीर को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू कर। वो मैं आपसे ज़रूरी बात करने आई थी। वो अचकचाकर बोली। अगर तुम्हें बीबी जान ने यहाँ भेजा है तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हीर, भाभी प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। वो मलची। हीर प्लीज़, मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। भाभी शम्स लाला बहुत अच्छे हैं। हीर की बात पर मेहरों ने परशुकवा नज़रों से इसे देखा। लाला ने निशार खान को जानबूझकर नहीं मारा था भाभी में। हीर ने वाज़ेह हदी में जानती हूँ तो फिर इस बात को सोचने में क्या बुराई है भाभी? कोई बुराई नहीं। मैं शादी ही नहीं करना चाहती तो फिर सोच कर क्या करूँगी? मेहरों ने दुखी लहजे में कहा। भाभी आप लाला के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी, मुझे पूरा यकीन है। एक बार, सिर्फ एक बार सब कुछ भुलाकर एक बार सोचें तो सोच लूँगी। वह कहकर खड़ी हुई। भाभी प्लीज़, हम सब आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ हीर, सब मेरी भलाई चाहते हैं। आप खफा होगी हैं मुझसे, मैं क्यों खफा होगी तुमसे हीर? भाभी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, पहले कल ही अम्मा ने बताया। बाबा ज़ुबैर हलाला से रिश्ते की बात कर चुके हैं। तुमसे खफा नहीं हो हीर, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे खफा नहीं हो सकती। मेहनू ने इसकी गाल पर हाथ रखकर प्यार किया। तो फिर मेरी बात मान लेना भाभी। हीर इसके हाथ से अपना हाथ में लिया। कहा है न सोचूंगी, आप मुझे टाल रही हैं? नहीं टाल रही। अभी लाल हवेली जाऊंगी तो वहाँ भी सब यही बात करेंगे।
जैसे सुबह बीबी जान और बाबा जान ने की, और अब तो सबके बार बार कहने से मुझे मानना पड़ेगा हीर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी अपनी कोई मर्जी हो ना हो, पर मुझे अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। यही जिंदगी है, हम औरतों की डुगडुगी बनकर जिंदगी गुजारती जाओ और दलही से कहती कबड़ की तरफ बढ़े। तुम भी तो जानती हो तुम्हारे साथ एक औरत होने के नाते जो हो चुका है वो सब भूला तो नहीं होगा तुम्हें। मेहरों ने कपट का एक कपाट खोलते हुए कहा, मुझे याद है सब भाभी, शायद चाहकर भी भूल नहीं पाऊंगी, मगर इसके बदले मुझे इतना कुछ मिल चुका है कि मैं इस सब को खुद ही याद नहीं करना चाहती। आपको याद है एक दफ़ा आपने ही कहा था कि हीर सब्र से बर्दाश्त कर लो, एक ना एक दिन तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो भाभी मुझे वो फल मिल चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी दिल में कोई खौफ वहम या ज़बरदस्ती रखे बगैर सोचें। हम औरतों की वाकई अपनी कोई मर्जी नहीं होती, हम अपने बाप भाइयों और शोहरों की ख्वाहिशात के आगे सर झुकाती आई हैं और आगे भी झुकाती रहेंगी। मगर इस बात पर भी इनकार नहीं कहे कि एक औरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द के सहारे की ही ज़रूरत होती है, चाहे वो सहारा बाप की सूरत में हो, भाई या फिर शोहर के। इन सहारों के बगैर हम औरतें कुछ भी नहीं हैं भाभी। हीर एहसान से कहती, मेहर को कायल कर लेना चाहती थी। मैं मानती हूँ ये बात कि मर्द के सहारे की औरत के लिए बहुत ज़रूरी है हीर, इसलिए मैं सोचूंगी इस बारे में। आप ये मत सोचिएगा भाभी कि शम्स लाले मेरे भाई हैं, मैं इसलिए आपको फोर्स कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें हमारी तरह। हीर कहती हुई इसके पीछे ही कब्र तक आई। वो मुझे तुम्हारे खुलूस पर कोई शक नहीं हीर। मेहरू ने इसके चेहरे को हाथों में प्याले में लिया। भाभी आप शम्स लाले के साथ बहुत खुश रहेंगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा किसी भी दबाव के बगैर। ही ने इसके हाथ अपने हाथों में थाम कर दबाए। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी भाभी बने। वो मुस्कुरा कर हो सोचूंगी ज़रूर। मेहरू ने मध्यम से मुस्कुरा कर हीर को मुतमईन किया, मगर वह खुद मुतमईन नहीं थी। ज़ुबैर खान मेहर और हदीद को आकर ले गए थे। हीर काफ़ी बेचैनी से मेहरू के फैसले के मुंतज़िर थी। मेहरू को लाल हवेली के 2 हफ्ते होने होते हैं, मगर अभी तक वहाँ से हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया गया था। हीर की बात में मेहरू से हर 4 दिन बाद हो जाती थी, मगर इस बार में दोबारा इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। हीर की बेचैनी आउट ऑफ कंट्रोल होती तो वो बीबी जान के पास आ बैठी। बीबी जान तस्बीह कर रही थी। मेरे भाभी कब तक आ रही हैं? बीबी जान आपकी बात हुई है इनसे? वो दुपट्टा उंगली में लिपटी बेचैनी से बोलती हूँ हुई थी, बात कह रही थी अभी कुछ दिन और रुकेगी वहाँ। जी ही ने इस बात में सर हिलाया। अब अगली बात पूछना चाह रही थी, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे पूछे। बीबी जान ने इससे बेचैनी से बोले बदलते देखकर खुद ही पूछ लिया, हीर बच्ची कोई और बात करनी है कि? जी जी है बीबी जान। तो फिर पूछो। बचका हिचकिचा क्यों रही है? मुस्कुराई वो बीबी जान। मेहरो भाभी ने क्या फैसला किया फिर? दिल की बात जुबान पर आई। तुम्हारी बात नहीं हुई मेहरो से? हुई थी, मगर इस बारे में नहीं। भाभी से बात हुई थी, उन्होंने ही बताया है कि मेहरों ने वक्त मांगे है सोचने के लिए। वो लोग तो राजी हैं, मगर भाभी कह रही थी ज़ुबैर ने कहा है कि मेहरों को फोर्स न किया जाए इस मामले पर। वो जो भी फैसला करेगी वो ही जवाब दिलावर हान तक पहुंच जाएगा। अब देखो मेहर कब फैसला करती है। बीबी जान ने तसल्ली हीर को आगाह किया। हूँ मैं भी मुंतज़िर हूँ भाभी के फैसले को। मायूसी से बोली। यशब नहीं आया पेशावर से भी? कल शाम तक आएंगे, अभी बात हुई है मेरी इनसे। आपके लिए चाय लाऊं? बीबी जान हो ले आओ, सर्दी बढ़ रही है, अब तो हर 2 घंटे बाद चाय पीने को दिल करता है। बीबी जान मुस्कुरा कर बोली, मैं अभी लाती हूँ। हीर भी मुस्कुराती हुई बाहर निकली। बीबी जान से बात करने के बाद हीर की बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया। मेहरो भाभी ने ना जाने क्या फैसला करेंगी। पहले तो उम्मीद थी कि इनके घर वाले राजी हैं इस रिश्ते पर, अब तो ज़ुबैर खान भी फैसला भाभी को सौंप चुका है। और भाभी वो परेशान से जल्दी सोच रही, मैं भाभी से बात करूंगी फिर से। नहीं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मैं इनका इतना ख्याल रखा और ये सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही है। मुझे खामोशी से इंतजार करना होगा। जिंदगी तो उन्हें गुजारनी है, बेहतर है कि वो खुद ही बिना दबाव के फैसले करें। क्या सोच रही है इस तरह? स्टेचू बनकर यशब अभी कमरे में आया था। हीर को एक ही जगह स्टिल देखकर इसके पास आकर बोला, आपका भाई फिर? यशब की आवाज़ पर चूं के सीधी हुई। अभी आया हूँ, आप किस मराके में मसरूफ़ है? मुस्कुराया। किसी मराके में नहीं, आपको तो कल आने वाले थे ना, तो वापस चला जाऊँ क्या? यशब जैकेट उतारता हफ्की से बोला, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही लिया। अच्छा बताइए, मेरी सारी चीज़ें लाए हैं ना? ना कोई खैरियत, ना कोई खैर खैरियत, ना खाना पीना, बस अपनी चीज़ों की पड़ी है। बहुत मतलब परस्त होगी हो। हुआ हीर इसकी बात पर खलखला उठी। अच्छा बताएं, कैसे हैं? पूरे 2 दिन मेरे बगैर कैसे गुजरे और क्या खाना पीना पसंद करेंगे? हाँ साहब, वो शरारत से कहती, दिल पर हाथ रखे झुके। यशब इसकी हरकतों में मुस्कुरा दिया। 2 दिन बहुत खराब गुजरे तुम्हारे बगैर। तुम जैसी चुड़ैल मुझे अपना आदि ही इस कदर बना चुकी है कि अब तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। यशब बात करते इसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं हुई ही ऐसी कि लोग जल्द ही मेरे असीर हो जाते हैं। और उतरा कर बोली, बिल्कुल। यशब मुस्कुराहट दबाता अब इस तक पहुंच चुका था।
जशब क्या कर रहे हैं हीर इसकी गिरफ्त में मछली। अब 2 दिन का रोमांस भी तो करना है जो ड्यू है। वो आंख दबाते बोला, बहुत खराब है आप, पहले शावर लेकर फ्रेश हो, कुछ खा पी लें, फिर रोमांस कीजिएगा, लिहाजा मुझे छोड़ें। वो कामों को तरतीब देकर बोली, तुम ऐसा करो, एक रोमांस चार्ट बनाकर कमरे में दरवाजे के पास लगा दो, जिस पर रोमांस करने का दिन और टाइम लिखा हो, ताकि मुझे आसानी हो सके। सारे मूड को खराब कर देती हो। जशब चिढ़ता हफ्की से बोला, अच्छा बस इतनी मासूम मत बने, जैसे मैं तो आपको जानती ही नहीं। फिर मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन में, आपके लिए चाय लेने जा रही हूँ, तब तक फ्रेश हो जाएं। हरी अब चाय तुम्हारे हाथ की ना हो तो चलेगी, वरना रहने ही दो चाय। जशब बदमजा मुंह बनाकर बोला, आप इतनी भी बुरी नहीं बनाती हो फौही, ये तो इनसे पूछो जो तुम्हारे हाथ के, जो शानदार नमाज चाय पीने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। ओह, खुद तो हिल कर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते और दूसरों की बनी चीज़ों में से नुक्स निकालते हैं। वो दाग चढ़क बोली, बहुत चलाक होती जा रही हो तुम, फिर भी आपसे कम ही हो। वो भी बदला चुकाती बाहर को भागी, क्योंकि जशब इससे पकड़ने को आगे बढ़ा था, पर हीर ने हर वक्त बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेहरा अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। इसे लाल हवेली आई 2 हफ्ते से ऊपर हो गया था, और जब यहाँ आई थी तो अम्मा ने ज़ुबैर लाले की मौजूदगी में ही इससे शम्स खान की प्रपोज पर बात करी की थी। इसकी हिचकिचाहट को देखते हुए ज़ुबैर ने ये कहकर इसे मुतमईन कर दिया था कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, वो जो भी फैसला करेगी वही सबको कबूल होगा, जिसकी वजह से मेहरो काफ़ी परसकून हो गई थी। मगर अब वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ज़ुबैर लाला ने जो दूसरा ऑप्शन इसके सामने रखा था, इससे वो फिर से अपसेट हो गई थी। इस दिन तो इन्होंने सिर्फ शम्स के प्रपोज पर इसका ज़ाती डिसीजन मांगा था, मगर इससे अगले दिन वो मेहरो के कमरे में आकर इसके लिए दूसरा प्रपोज भी बता दिए थे, जिससे मेहरो बेचैन हो गई थी, क्योंकि ज़ुबैर लाला ने फैसला करने की आज़ादी तो इसे दे दी थी, मगर पर काट कर। इनका कहना था कि मेहरो को इन 2 प्रपोज में से एक फाइनल करना है। शतरंज का सिर्फ एक ही पत्ता ही मेहरो के हाथ में दिया था इन्होंने। मेहरो ने ठीक ही कहा था, हम औरतें अपने मर्दों की कुर्बानी देती आई हैं और देती रहेंगी। दूसरा प्रपोज मेहरो के तायाजाद अबरार खान का था, जिसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा 10 साल का था, बीवी चंद माह पहले ही चल बसी थी, और अब फिर से अबरार खान को शादी की समाई थी। मेहरो और अबरार खान की रंगीन मिजाजियों को बरसों पहले से जानती थी। जानते तो सब ही थे, पर फिर भी ज़ुबैर लाला ने ना जाने क्यों इन लोगों को मना किए बगैर प्रपोज मेहरो के सामने रख दिया। अब मेहरो के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, शम्स खान या अबरार खान। इन दोनों में से किसी को एक को सिलेक्ट करना था। इनकार का ऑप्शन ज़ुबैर खान इससे वापस ले चुका था। वो कोई भी फैसला नहीं कर पाई थी, इसलिए इसने वापस जाने का सोचा, ताकि वहां जाकर यशब से मशवरा कर सके। भाभी, देवर और कज़न के अलावा अच्छे दोस्त भी थे, जो बिला झिझक एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। इसीलिए मेहरो ने यशब से मशवरा करने का सोचकर खुद को मुतमईन कर दिया था। मेहर जाने से पहले शहरबानों से मिलने आई थी। शहरबानों मेहर की खालाजाद और अबरार खान की छोटी भाभी थी। तो काफ़ी देर शहरबानों से बातें करने के बाद वापस आने के लिए राहदारी इसमें से गुजर रही थी, जब सामने से अबरार खान आता दिखाई दिया। मेहरों ने इसे देखकर सर झुका लिया और बड़े बड़े कदम उठाने लगी, ताकि जल्दी से बाहर निकल जाए, मगर अबरार खान ने इसके बराबर आते ही बाजू फैलाकर रास्ता रोककर, क्या बदतमीजी है, वो सर उठाकर नगवाई से बोली, मैंने रिश्ता भिजवाया था। मगर ज़ुबैर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गर्दन अकड़ा कर बोला, तो ये कि कब तक जवाब मिलेगा। वो कलफ लगी गर्दन अकड़ा कर खड़ा हुआ। अबरार लाला, अभी भाभी को मरे सिर्फ 3 माह हुए हैं और आपको शादी की पड़ गई है। मेरों ने शर्म दिला ली इसकी बात, और वो मुझको बाल देता मुस्कुराया, मैं मर्द हूँ, मर्द। मेहरो बीबी मर्द है तो मर्द बने। यूं अपने घर की बहन बेटियों को रास्ता रोककर मेहरो ने इसकी तरफ देखा, और अबरार खान की आंखों में हमेशा वाली गंदगी देखकर वो बात अधूरी छोड़ दी, साइड से होकर आगे बढ़ गई। ओह चीप इंसान, वो बड़बड़ाती ही बाहर निकली। मेहरो ने जब से जवानी में कदम रखा था, तब से ही इसने अबरार खान से कतराना शुरू कर दिया था। एक तो वो रंगीन मिजाज मर्द थे, गली गली मडलाने वाले, और दूसरा मेहरो को हमेशा इसकी बेबाक नजरों से उलझन होती थी। जब कभी मेहरो की नज़र इसकी नज़रों से मिलती तो मेहरो का दिल चाहता कि वो कहीं छुप जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पर अबरार खान की गंदी और बेबाक नज़रें इस तक न पहुँच पाएं। हालांकि वह मेहरो से 14-15 साल बड़ा था, फिर भी मेहरो इसके सामने से कुर्राती थी। शादी से पहले तो वो ताया के घर आते हुए भी बाला को हमेशा अपने साथ लाती थी, अबरार खान से मुतल्लक अपने दिल में वजूद खौफ की वजह से। और अब वो क्योंकि इस शख्स के हक में फैसला दे देगी जिसकी निगाहों की बेपर्दा तपश से एक अरसे से इसने कुतराया और छुपने को गुजारा था, मेहरो ने वापसी के चंद मिनटों में ही फैसला कर लिया। अबरार खान से थोड़ी देर की मुलाकात ही इसके डिसीजन लेने में मददगार साबित हुई। ओफो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो चुका है। हीर खुशी से भरपूर आवाज में चहकी, जैसे हाथ में सर गिराए बैठा था। अभी कुछ देर पहले लाल हवेली से
फोन आए थे कि मेहर भाभी ने शम्स खान के हक में फैसला दे दिया है। जब से ये खबर सुनी थी हीर की तो कदम ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसके बरअक्स जशन संजीदा खामोश सा था। जशन ने हीर की बात पर सर उठाकर इसकी खुशी से जगमगाते चेहरे को देखा और लंबी सी सांस लेते उठकर हीर की तरफ आया। मैं अभी एक थप्पड़ से यकीन दिला देता हूँ तुम्हें कि ऐसा हो चुका है। जशन ने इसके ड्रेसिंग टेबल के सामने पीछे से हजारे में लिया। वेरी फनी, हीर ने नाच रहा। इट्स नॉट फनी, आई कैन डू। मैं जानती हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। माजी में काफी थप्पड़ खा चुकी हूँ, भूल जाओ माजी को। यशब ने इसकी लिट उंगलियों में लिपटी। भूल चुकी हूँ फिर भी ताने देती हो। कभी कभार देने पड़ जाते हैं। हीर मस्ती मुझसे बोली, मत दिया करो कभी कभार भी। मुझे वो सब याद आ जाते हैं जो मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। वो सादगी से बोला। मैं मजाक कर रही थी हान। हीर ने इसकी संजीदा तासरात पर आईने में नजर आते इसके अक्स को देखकर कहा। हूँ जानता हूँ। यशब इसकी लिट खींचता पीछे हटा। आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? मेरे भाभी का फैसला आपको अच्छा नहीं लगा क्या? हीर ने पूछते हुए यशब से सिगरेट छीनी जो वह मुंह में ले चुका था। नहीं, मुझे इस डिसीजन में कोई इतराज नहीं, मैं इनके साथ हूँ। यशब ने संजीदे से कहा। यही बात मुस्कुरा कर कहें। ये सिगरेट वापस करो और जाओ जाकर कुछ काम वाम करो। दिन ब दिन फैलती जा रही हो। वो मुझे मोटी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। ओह हेलो मिस्टर, मैं लड़की नहीं आपकी बीवी हूँ। मोटी बिजली काली पीली जैसी भी हूँ हो जाऊँ आपकी बीवी ही रहूंगी, समझे? हीर उंगली उठाकर बोली। समझ गया। यशब इसकी उंगली पकड़कर हल्की सी मोड़ी। ओ हमारी कस्तर जलाद सिर्फ इंसान है। आपको उंगली सलाती जी जलाद सख्त के अलावा भी रोमांटिक भी तो हूँ। जशन ने आंख मारी। इसने ना चढ़ी। मैं जा रही हूँ नीचे, बीबी जान ने बुलवाया है मुझे। आप भी आ जाए। तुम जाओ, मुझे कुछ काम है वो करके आता हूँ। यशव ने लैपटॉप उठाते हुए कहा। ये तो देती है जाओ। इसने सिगरेट की डब्बी की तरफ इशारा किया जो हीर के हाथ में था। ओहो, इसके बगैर तो सांस भी नहीं आएगी मोहतरम को। इसने बड़बड़ाते हुए डब्बी यशव की तरफ चलाई जिसे यशव ने कैच करके विक्ट्री का निशाना बनाया और हीर की तरफ हवाई की चलाई। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। मेहरों के करार के बाद दिलावर खान और खतीजा लाल हवेली जाकर शादी की तारीख लेकर आए थे। क्योंकि शादी का अमल रवायती अंदाज में नहीं किया जाना था, लिहाजा सादगी से निकाह करने का फैसला किया गया। हाकान अफरीदी की ख्वाहिश थी कि हीर इनकी हवेली से रुखसत हुई, पर यशिब को यह गवारा नहीं था कि शम्स खान इसकी हवेली में इसकी भाई की बीवी को बिहाने आए। लिहाजा इसने बाबा जान को मना कर दिया था। अब मेहरों को लाल हवेली से ही रुखसत होकर शम्स खान की हवेली में जाना था। वो ना तो खौफजदा थी और ना ही कन्फ्यूज, सिर्फ खामोश थी। क्योंकि बास औक़ात इंसान ऐसी कैफियत में मतला हो जाता है जहाँ न कोई खुशियत असर करती है और ना ही तसल्ली, ना बाहर बसने वाली दुनिया और ना ही अंदर कब्रों से बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है तबीयत पर। ऐसी कैफियत मेहरों की थी। वो भी खामोश तमाशाई बनी सब कुछ होता देख रही थी। हीर यशब के साथ लाल हवेली मेहरों से मिलने आई थी। वो बहुत खुश थी कि मेहरों ने शम्स लाला के हक में फैसला किया। इससे मेहरों को यकीन दिलाया कि वो शम्स खान के साथ बहुत खुश रहेगी। मगर मेहरों को यशब की बात पर ही उड़े हुई थी। यशब ने बातों बातों में मेहरों से कहा था कि वो हदीद को अपने पास ही रखेगा। मेहरों तो तब चुप रही, मगर अब जैसे जैसे निकाह का दिन करीब आ रहा था वो फिक्रमंद हो गई थी। यशब को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं माँ हूँ हदीद की, मैं जानती हूँ वो इस हवेली का वारिस है, मगर इसका ये मतलब नहीं हदीद को मुझसे दूर कर दिया जाए। हदीद को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। इसने बड़बड़ाते हुए यशब का नंबर बनाया। यशब लैपटॉप पर बिजी था जब इसका सेल वाइब्रेट हुआ। भाभी कॉलिंग लिखा देकर इसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे याद किया मुझे नाचीज़ को? खफा हो मुझसे, क्या हो सकता है? यशब ने उल्टा इसी से सवाल के नहीं एग्जैक्टली हदीद कैसा है? वो मसरूर से बोला। वो ठीक है यशब, मुझे हदीद के बारे में ही तुमसे बात करनी है। मेरा आस्ती के साले कैसी बात? इस दिन तुम कह के गए थे हदीद को तुम अपने पास रखोगे। जी। यशब ने सर हिलाते हुए लैपटॉप पर से सेंड को क्लिक किया और लैपटॉप ऑफ करके सोफे की पास पर टेका दी। जैसे तुम जानते हो मैं इसकी माँ हूँ। जानता हूँ, फिर तुम इससे क्यों कहा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यशार खान का खून शम्स खान की हवेली में परवश पाए। फिर तो यशार खान की बीवी को भी इस हवेली में जाना सूट नहीं करता। भाभी मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। आपने इब्रार खान के मुकाबले में शम्स खान का प्रपोज एक्सेप्ट करके अच्छा फैसला किया है, पर हदीद को वहाँ रहना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो रिसान से बोला। हीर ने तुमसे कुछ कहा है इस बारे में? मेहरो मशकूक हुई कि शायद हीर के घर वालों ने मना किया हो हदीद के साथ लाने से। नहीं, वो क्यों कहेगी कुछ? मुझे ही ये मुनासिब नहीं लगा था। यशब मैं हदीद को साथ लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं इसके बगैर रह सकती हूँ या फिर वो बगैर बगैर वो हंसी हुई। भाभी आप ज़्यादा दूर नहीं होंगी, मैं हदीद को मिलवा लाया करूँगा। यशब इसे कायल करना चाहे। बिल्कुल नहीं, हदीद मेरे साथ ही जाएगा। यशब मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। जैसे आपकी मर्जी। यशब ने कहकर कटक से कॉल काट दी। किसी बात से बात कर रहे थे? हीर ने कमरे में दाखिल होकर यशब का सुर्ख चेहरा देखा। किसी से नहीं। वो गुस्से से क्वेश्चन को लात मारकर कीज उठाकर बाहर निकल गया।
हीर ने अफसरदगी से यशब के पक्ष को देखा। जब से मेहर भाभी ने लाला के हक में फैसला किया था, यशब काफी से ज्यादा संजीदा रहने लगा था। यशब का रवैया कुछ बुरा भी नहीं था। हीर ने खुद को इसकी जगह पर रखकर सोचा था, इसका इकलौता भाई जवानी में ही चला गया। ये दुख बहुत बड़ा था और अब अपने भाई की बेवा को इसी शख्स के साथ हवाले करना इससे ज्यादा मुश्किल। मेहरों को यशब से बात करने के बाद यूं लग रहा था जैसे इसने कोई गलत फैसला कर लिया हो। वह सर्दी सी बैठी थी जब अम्मा स्टिक के सहारे चली आई। ऐसे क्यों बैठी है मेरा? वो पास आकर तख्त पर बैठी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरा मुस्कुरा कर सीधी हुई। परेशान हो नहीं? मेरा ने अपने पैर की अंगूठी को देखते हुए नफी में सलाया। शम्स अच्छा लड़का है, जुबैर के साथ पढ़ता रहा है, इसलिए जुबैर भी मुतमिन है। मुझे भी इब्रार के बारे में वो ही मुनासिब लगा। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। इन्हें मेहर को जगह सर पर हाथ फेरा। मेहर इनका लम्स पाकर बेकाबू होती इनकी गोद में सर रखकर रो पड़ी। अम्मा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब कबूल करना। ऐसा मत करें आप लोग अम्मा, मैं कह रही नहीं जाऊंगी। मुझे मुझे ये शादी नहीं करनी। वो रोती हुई कह रही थी, मैं यशार की कातिल को शोहर के रूप में कैसे कबूल करूंगी अम्मा? मुझसे ये सब नहीं होगा। रोक दें, सब इनकार कर दें इन लोगों को। ऐसे मत कह मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे वह सारी खुशियाँ दें जिनकी तुझे ख्वाहिशें। मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे तेरी ये जुड़ी जिंदगी नहीं देखी जाती मेहर। ऐसा मत कह, जो हो चुका है वो जो हो रहा है वो सब ऊपर वाले की मर्जी है। इसे अल्लाह की रजा जानकर कबूल कर ले मेरी जान। मैं मरने से पहले तुझे खुश व खुर्रम देखना चाहती हूँ। मैं ऐसा मत कहें प्लीज़। मेरा माँ के बात पर तड़प कर पीछे हटी। आपको अल्लाह आपको मेरी भी जिंदगी लगा दे। माँ, आप हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे। मेहरों ने इनके हाथों को होंठों से लगाया। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ मेहर, और अब पाक परवरदिगार से अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ हूँ। मुझे और क्या चाहिए? उन्होंने प्यार से मेहरों के बाल सरमारे। मामा, व्हाट हैपेंड? आप रो क्यों रही हैं? हदीद फूले सांस से वहाँ खड़ा फिक्रमंदी से मेहरों को आंसू पूछते देख रहा था। वह बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था और अभी वहाँ से आया तो कुछ नहीं मेरी जान, मैं रो नहीं रही। गेम खत्म हो गया है आपका? मेहरों ने मुस्कुराते हुए पूछा। यस पप्पो, गेम खत्म हो गया। आप जल्दी से हम सबको नूडल बना कर दें। रियान ज़ुबैर खान के बेटे ने हदीस समेत अपने दूसरे दोनों भाइयों की तरफ इशारा किया। ओके, मैं अभी बनाकर देती हूँ, तुम लोग दावतों के पास बैठो। मेहर मुस्कुराती हुई इन सब के लिए नूडल बनाने किचन की तरफ चलेगी। आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन ही शाम सब मेहरा को निकाह रखा गया था। बाबा जान, बीबी जान और ही कल ही लाल हवेली आ चुके थे। यशब को आ जाना था निकाह से पहले। हीर अपने घर जाकर हतीजे के साथ सारी तैयारियां करवा आई थी और अब इसने मेहरों की तरफ से ही शामिल होना था। जुम्मे की नमाज के बाद निकाह का टाइम कर हुआ था और अब सब मर्द नमाज पढ़ने गए हुए थे। हीर के घर वाले भी चंद एक मेहमानों के साथ आ चुके थे, मगर यशब का कोई अता पता ना था। हीर ने इससे कहा कि मगर यशब का सेल ऑफ था कि हाँ रह गई। शवा बेचैनी से टेल्स पर टलती इसकी का इंतजार कर रही थी। जब मेहरो इसके पास आई, मेहरो ने ऑफ वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था। हीर भी ये ड्रेस इसके लिए लाई थी इसी पसंद से। बालों को चुटियों में कैद रखा था जिसमें से चंद एक लटें इधर उधर बिखर रही थी। हल्के मेकअप और ज्वेलरी के साथ सवारियत सी वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो नहीं आएगा, मेहरो आस्तिकी से बोली। में है हीर ने मोहरी के बाद वह पलट के से देखा। मेरी सुबह बात हुई थी, भाभी कह रहे थे कि निकाह से पहले आ जाएंगे। निकाह से पहले नहीं, निकाह के बाद आएगा। वो मेहरो लंबी सी सांस लेकर कहती बाहर देखने लगी। आपकी बात हुई थी इनसे? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ इसे। आप इनकी वजह से परेशान मत हो भाभी। हीर ने इसकी अफसरदा शक्ल देखकर तसल्ली दी। हीर मुझसे कभी खफा नहीं हुआ था, पर अब हो चुका है। ऋषभ आपसे खफा नहीं हो सकते भाभी, वो आपसे बहुत इज्जत करते हैं। वो तसल्ली अमेज अंदाज में बोली। हाँ मैं जानती हूँ, पर वो मुझसे खफा है हदीद के मामले पर। हदीद के मामले पर? कैसा मामला? हीर हैरान है। वो चाहता है मैं हदीद को अपने साथ ना लेकर जाऊँ बल्कि इसके पास छोड़ दूँ। मेहरा अफसरदगी से बोली। ऐसे कैसे हो सकते हैं भाभी? हदीद बहुत छोटे है, कैसे रहेगा आपके बगैर? ऋषभ ने इसे कह दिया होगा। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगी इनसे। नहीं हीर, इसने ठीक ही कहा था। हदीद इशार का खून है, वारिस है इस खानदान का, फिर कैसे वो किसी और के घर में प्रवेश पा सकता है? वो किसी और का घर नहीं भाभी, आपका घर होगा, हदीद की माँ का घर। हीर ने इससे मोहब्बत से कहा। मेरो हीर की बात पर दर्दगी से मुस्कुरा दी। तुम बहुत अच्छी हो, आप मुझसे ज्यादा अच्छी हैं भाभी। हीर ने इसके हाथ थामे पे। हीर तुम हदीद का ख्याल रखना, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगी। वो अपने बाप के घर में ही परवरिश पाएगा। मगर भाभी वो कैसे रहेगा आपका बगैर? हीर फिक्रमंद हुई। रह लेगा, वह जैसे बाप के बगैर रह रहा है वह सौदा ही। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाभी, हदीद आपके साथ ही जाएगा। मैं यशब को मना लूंगी, आप टेंशन मत लें प्लीज। तुम यशब से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। हीर, मैंने हदीद को समझा दिया है, रात को वो तुम लोगों के साथ रहेगा। ऐसा क्यों किया आपने? वो बच्चा है अभी।
हीर परेशान है, कल वो बच्चा बड़ा होगा और जब वो मुझसे पूछेगा कि मामा आपने बाबा के कातिल के साथ शादी क्यों की, तो मैं क्या जवाब दूंगी। हीर से हीर मेहरों के आंसू गालों पर फिसलते थे। बच्चा तो प्यार के भूखे होते हैं भाभी, जहाँ से प्यार मोहब्बत और तवज्जो मिले वहाँ के हो जाते हैं। पर आप कह रही हैं कि वो अपने बाप के कातिल के घर परवरिश नहीं पा सकता, तो ठीक ही कह रही होंगी। मैं हदीद का ख्याल रखूंगी, मुझे बहुत अजीज है, वह फिक्र मत करें। हीर सवार से अंदाज में कहकर वहां से चली आई। ना जाने कब तक लाला कातिल ही खिलाते रहेगा। वो सदी से सोई थी नीचे हाल में आई। पहले वो यशब के नहाने से परेशान थी, अब भाभी की बातों से इसे मजीद परेशान कर दिया था। निकाह हो चुका था, मेहरा के कहने के मुताबिक यशब वाकई नहीं आया था। हीर भी ठीक से खुश नहीं हो पा रही थी। पहले जितनी वो खुश थी मेहरों और शम्स की शादी से, अब इतनी ही अफसरदा बैठी थी। निकाह के बाद खाने का इंतजाम था। खाने से फारग होने के बाद दिलावर खान ने इन लोगों से वापसी की इजाज़त चाही। हीर और शहरबाना मेहरों को वहाँ हाल में ले आई थी जहाँ मेहमान खवातीन बैठी थी। हीर यशब अभी भी नहीं आया। मेहरों ने हीर के कान के पास सरगोश की, इसका चेहरा घूंघट निकाल कर छुपाया गया तो नहीं हो। मेहरों ने अफसरदगी से सर हिला दिया। मीर बच्चे चलो, मेहरों को लेकर वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। बीबी जान ने हाल में दाखिल होकर कहा। जी बीबी जान। हीर ने सर हिलाकर मेहरों को बाजू थामा और बाहर की जानब चल पड़ी। राहदारी में खड़ी सब रिश्तेदार औरतें बारी बारी मेहरों से मिलती और दुआएं देती जा रही थी। कुछ आगे जाकर मेहरों ने हीर का हाथ थामा जो इसके बाजू पर था। यशब से कहना मैं भी इससे खफा हूँ, लिहाजा मेरे सामने मत आए। अब वो मैं आपके सामने आ चुका हूँ। यशब की आवाज़ पर जहाँ हीर पलटी वहीं मेहरों ने भी चादर पीछे सर गई। उस पर शिकवा निगाहों से यशब को देखा। आप मुझसे खफा होकर मत जाएं, क्योंकि मैं आपसे खफा नहीं हूँ। वो संजीदगी से, वो तो फिर कहाँ थे अब तक? जानते हो मैं और हीर ने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मेहरों के आंसू पलकों से नीचे गिरे हैं। प्लीज रोए मत आप। आज वो मेहरों को भाभी के बजाय आप कहकर बात कर रहा था। यशब ने इसके कांधे की गर्द बाजू फैलाई। आप बहुत बहुत बुरे दोस्त साबुत हुए हो तुम। मेहरों ने इसके बाजू पर मुक्का जोड़ा। बोला तो मैं हूँ ही, अपनी नन से पूछ लें। यशब ने मुस्कुराकर हीर की नाक खींची। जवाब हीर ने जोर से इसका हाथ झटक दिया, जो हफ्की की अलामत थी। और कितनी देर है भाई? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। ज़ुबैर खान ने इनकी तरफ आते पूछा। जी बस आ रहे हैं। हीर ने मेहरों को देखा। मेहरों ने एक खामोश नजर पास खड़े यशब पर डाली। हमेशा खुश रहें। यशब ने मेहरों के सर पर हाथ रखकर दबा दी और बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ चल पड़ा। हीर ने मेहरों की चादर को दुरुस्त किया और इसे साथ लेकर बाहर निकली। मेहरों सब बड़ों बुजुर्गों की दुआएं तरह रुखसत होकर शम्स खान की हवेली आ चुकी थी। हीर भी इसके साथ आई थी। चंद रवायती रस्मों के बाद हीर मेहर को इसके कमरे में ले आई थी। ये कमरा हीर ने ही डेकोरेट करवाया था और मेहर को शम्स और परवरिश के कमरे में नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए इसने मेहर और शम्स के लिए नया कमरा सेट करवा दिया था। हीर ने मेहरों को कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। ये आपका कमरा है भाभी, इसकी हर चीज़ आपकी मलकियत है, बल्कि ये हवेली, ये घर भी आपसे ही आपका है, आज से ही आपका है। उम्मीद है आप बिना किसी तकल्लुफ़ के यहाँ की हर चीज़ को यहाँ के मिल्कियों समेत अपना समझेंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियों से नवाजे, वो सब खुशियाँ जो आपका हक हैं। मैं अब चलती हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। हीर ने तफसीली बात करके जवाब दिया। नहीं। मेहर नफी में सर लाए। ठीक है मैं जाती हूँ, आप रिलैक्स होकर बैठे भाभी। हदीद को मैं अपने साथ ही सुलाऊंगी। हीर हदीद को भी अपने साथ ही लेकर आई थी। हूँ बेस्ट ऑफ लक, वो मुस्कुरा कर कहती कमरे से चलेगी। पीछे मेहरो बेचैनी से उंगलियां चटहाने लगी। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। हथेलियां बार बार पसीने से भीगती, जिन्हें वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कपड़ों से रगड़ कर साफ कर लेती। अजीब सी टेंशन थी। हालांकि निकाह से पहले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज न थी, फिर अब क्यों ऐसा हो रहा था। मेहरा को दिल की दग दग से बेचैन होकर पास पड़े जग से पानी गिलास में अंडा और पीने लगी। पानी पीकर वो सीधी हुई थी जब आश्तिकी से कमरे का दरवाजा खुला। शम्स अंदर दाखिल हुआ। मेहरों ने इसे देखे बगैर ही सर झुका दिया। शम्स छोटे छोटे कदम उठाया, पैर के करीब आकर खड़ा हुआ। मेहरों बेड से टांगे नीचे लटकाकर हाथों को मजबूती से दबोचे सर झुकाए बैठी थी। शम्स ने एक नजर इसके झुके सर को देखकर आस्तीगी से सलाम किया। मेहरों ने सर की हल्की सी जब से इसके सलाम का जवाब दिया। मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए आसान नहीं। मैं यशार का कातिल हूँ और इसके कातिल को किसी भी रिश्ते में कबूल करना यकीनन आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। बेशक मैंने यशार खान को जानबूझकर नहीं मारा, मगर इस गोली मेरे हाथ से ही लगी थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है और शायद मरते दम तक रहे। शम्स ने सर्दी से अपने हाथों को देखते हुए कहा। बाबा ज़ुबैर को अच्छे से जानता था, इसलिए इन्होंने मुझसे मशवरा किए बगैर ही इससे रिश्ते की बात कर ली। अगर मुझे इनके फैसले का इल्म होता तो मैं बिल्कुल भी इन्हें इस बात की इजाज़त ना देता, क्योंकि जिस तरह यह सब आपके लिए मुश्किल है, इसी तरह मेरे लिए भी। मैं खुद को आपका मुजरिम तस्वर करता हूँ, शायद आगे भी करता रहूँ। मुझसे जो हो चुका इसकी कोई माफ़ी नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सांस लेने को रुका। मेहरो दम सादा शम्स को सुन रही थी। आपके घर वालों ने बहुत बड़ा
دل بہت بڑے ہیں، میں ان کی برائی کی دل سے قدر کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل جانا کہ اپنی بیٹی میرے حوالے کی۔ یہ گھر آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، میں کسی بھی معاملے میں آپ کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو میری ذات سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور پھر سے رک کر سانس لینے لگا۔ مجھے کسی چیز کی کوئی جلدی نہیں ہے، اس لیے آپ ریلیکس ہو کر رہیں۔ میں خود کو اور آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کا، کیونکہ وقت ہی ہر زخم، ہر دکھ کا بہترین مرہم ثابت ہوتے ہیں۔ آپ جتنا چاہیں وقت لے سکتی ہیں، میں آپ کے ہر عمل پر فیصلے کے دل سے قدر کروں گا، لہٰذا آپ ریلیکس ہو جائیں۔ شخص اپنی بات مکمل کر کے اچھی نظر مہر کو جگہ سر انگلیاں چٹھان دے ہاتھوں میں ڈال کر اسٹڈی کی طرف چل گیا، اور وہ واقعی ریلیکس ہو چکی تھی۔ مہروں نے سر اڑا کر شمس کی پش کو دیکھا، پرسکون ہو کر سر بیٹھ کے بیٹیک سے لگا دیا۔ وہ جس بات سے کنفیوز تھی، اس بات کے لیے شمس اس وقت دے چکا تھا، اور مہروں کو وقت ہی تو چاہیے تھا۔ اگلے دن چند ضروری مہمانوں کی موجودگی میں ولیمے کا چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا۔ لال حویلی اور فریدی حویلی سے سب آئے تھے سوائے یشب کے۔ ہیر کی یشب سے ناراضگی کا گراف مزید اونچا ہو گیا۔ وہ فنکشن کے بعد واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بی بی جان کے کہنے پر وہ انکار نہ کر سکی تھی، اس لیے ان کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ مہروں بھی حدید کو یہ 1-2 دن رہنے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو یشب گھر پر نہیں تھا۔ ہیر نے چینج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کافی دن کی تھکان تھی، اس لیے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اشرف جب کمرے میں داخل ہوتا ہیر کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ تو سوچ رہا تھا محترمہ 4-5 دن تک واپس نہیں آنے والی، مگر اب اسے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ہیر گہری نیند میں تھی۔ اشرف نے مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کیا ہوا؟ کون؟ ہیر ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے یشب کو مسکراتا دیکھ کر غصے سے چیخی، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی ہو انجان بن؟ اتنی اچھی نیند آئی تھی مجھے اور آپ جگا دیا شمس۔ آج مسٹر، آپ کھڑے ہو کر دانت کیوں نکال رہے ہو؟ چڑھ کر بولی۔ چڑیل لگ رہی ہو، یشب نے اس کے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا، اور آپ بھی بھوت لگ رہے ہیں، یوں ہنستے ہوئے۔ اچھا بتاؤ اتنی جلدی کیسے واپسی ہو گئی؟ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، لہٰذا مجھے سونے دے۔ ہیر نے کمبل میں منہ چھپایا۔ پابند تو ہو تم میری، مگر ہوا کیا ہے؟ جانا ڈارلنگ، یشب نے چھیڑتے ہوئے اس کا کمبل ہٹایا۔ یشب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ خفا کیوں ہو؟ آپ تو ننھے کاکے ہیں نا، جو جانتے نہیں کیا ہوا؟ ہاں، یشب اس کے لفظ ننھے کاکے پر دل کھول کر ہنسا۔ ہیر بوسیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ چلو ساری خفگی ختم کر کے دوستی کرتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے کوئی دوستی ووستی نہیں کرنی آپ سے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ سوری فار دیٹ۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے کچھ بھی کر کے سوری کہہ دینا۔ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوری کر تو رہا ہوں، اب کیا کروں؟ مجھ سے بات مت کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یشب اس کی ناک کھینچی۔ میرا نہیں تو بھابھی کا خیال کر لیتے ہو؟ وہ بار بار آپ کو پوچھ رہی تھی، میں نے کتنی کالز کی آپ کو؟ کیا یہی ویلیو ہے میری آپ کی نظر میں کہ میری کال کاٹ کر آپ سیل آف کر دیں؟ وہ حفقی سے بولی۔ سوری، آج کے فنکشن میں بھی نہیں آئے آپ؟ سوری، اور بھابھی سے آپ نے یہ کیوں کہا کہ حدید ان کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ یہاں رہے گا؟ ہیر ہر بات پر یاد آنے پر گھور کر بولی، میں نے کہا تھا ان سے، مگر اب میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ چکا ہوں۔ حدید بہت چھوٹے ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے۔ باپ تو مر چکا ہے اور اب میں اسے ماں سے جدا کر کے ماں کی ممتا سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں اپنی بات واپس لے چکا ہوں۔ تم انہیں بتا دینا، انہیں کہیں۔ ہیر نے ابرو اٹھائے۔ مسز شمس دلاور خان کو، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ مسز شمس، بھابھی بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ ہیر نے ناک چڑھایا۔ ایسے یشب کا مہروں کو بھابھی کی بجائے مسز شمس کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ 2 دن بعد شمس مہروں کو لے لال حویلی گیا۔ مہروں حدید کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے زبیر لالا سے کہہ دیا تھا کہ وہ حدید کو افریدی حویلی چھوڑ آئیں۔ زبیر خان نے جواب میں کیا کہا، کیوں جیسے سوال پوچھنے کے بجائے اچھا کہہ کر جواب میں سر ہلا دیا۔ شمس حدید کو جانتا تھا، وہ اس سے مل بھی چکا تھا، اس لیے واپس اسی پر وہ مہروں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ حدید کا ساتھ کیوں نہیں لائی، مگر عجیب سی ہچکچاہٹ آڑے آ رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور مہروں کو حویلی چھوڑ کر خود ڈیرے پر چلا گیا۔ زبیر خان اگلے ہی دن حدید کو افریدی حویلی چھوڑ گیا تھا۔ جب بی بی جان اور بابا جان کو یشب کی بات کا پتہ چلی تھی کہ وہ حدید کو مہرے کے بجائے اپنے پاس رکھنا چاہتے، بابا جان نے یشب کو اچھا ہنسی سنائی تھی، جسے یشب ہر جگہ خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑی ہیر جانتی تھی خاموشی کا لاوا اسی پر پھٹے گا، کیونکہ ہیر نے بی بی جان اور بابا جان کو یشب کی حدیث سے متعلق بات بتائی تھی، مگر خلاف توقع یشب نے ہیر سے بات برس کرنے کے بجائے اسے یہ کہا کہ کل وہ جا کر حدید کو مہرے کے پاس چھوڑ آئے۔ ہیر نے یشب کو بھی ساتھ جانے کا کہا، مگر وہ نہیں مانا۔ یوں ہیر اگلے دن بی بی جان کو ساتھ لے کر حدید کو مہرے کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ مہرہ جہاں خوش تھی حدید کے آنے پر، وہیں تھوڑی اپسٹ بھی تھی کہ شاید وہاں کے ملکینوں کو حدید کا وہاں آنا اچھا نہ لگے۔
मगर वो गलती वह किसी की परवाह किए बगैर गुजर जा रहा था। मेहरों को वहाँ आए 1 माह हो चुका था। 1 माह में ही इसके और शम्स के दरमियान कुछ नहीं बदला था। वो आज भी पहले दिन की तरह एक ही कमरे में 2 अजनबी बनकर रह रहे थे। मेहरों के लिए सिर्फ शम्स खान ही अजनबी था अब तक, क्योंकि हवेली के बाकी मिल्किन जिनमें दिलावर खान, हदीजा, हवेली की 4-5 मुलाजमें शामिल थी, वो इन सब से अपनी खुशमिजाजी के बाद घुल मिल गई थी। मेहर अफरीदी हवेली की तरह यहाँ भी बहू होने का पूरा पूरा हक अदा कर रही थी। इसने हवेली की बहुत सी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, जिन्हें मैं बहुत खुश असलूबी से अंजाम दे रही थी। हदीजा मेहरों के इस रवैये पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जिन्हें मेहरों की शक्ल में इतनी अच्छी बहू मिल गई थी। अच्छी तो खैर परवरिश भी थी, मगर थोड़ी नखरे वाली थी, जबकि मेहरों में ना हम भी नखरा नहीं था। इसलिए हदीजा भी खुशी खुशी हर काम को मेहरों के मशवरे से ही करती थी। यूँ सास बहू की अच्छी बन गई थी। इस वक्त मेहरों रोती हुई दुआ को गोद में लिए बिठा रही थी जब खदीज वहाँ आया। मामा ये क्यों रो रही है? लाएं इसे मुझे दे, मैं चुप करवाता हूँ। नहीं, इसे भूख लगी है, अभी दूध पीकर चुप हो जाएगी। मेहरों ने रहीमा से फीडर पकड़कर दुआ के मुंह को लगाई। जैसे वो चुप होकर पीने लगी। मामा आपको पता है